Good morning, students. Today I am going to explain you lesson 2 from Ncert book Microorganism, Friends and Foe. In this manner, I'll explain you about microorganism. What are microorganisms? Microorganisms are other living organisms which are find around us, जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं. For example, you have seen in rainy season when you kept or you are keeping means bread, moist bread get spoilt and surface gets covered with grayish or whitish patches. Observe these patches through magnifying glasses. You can observe by the magnifying glasses. Okay, now I'll explain you. ठीक है, microorganism or microbes, you can say it microbes also. They are very small in size. Okay, you can't be seen with your unaided eyes or naked eye. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen only by a magnifying glasses, and other cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. We can classify it into 4 groups like bacteria, fungi, protozoa and algae. First we will study about viruses. Viruses are also microscopic but are not considered as microorganism. वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक हैं लेकिन इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जैसे कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, कुछ भी हो सकते हैं इनके अंदर. ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. इनके जो डिजीजेस यू कैन सी by microorganism like viruses, that is common cold, influenza and other also. Or in this category some serious diseases also like polio, chickenpox, these also caused by viruses. Diseases like malaria, dysentery, that is caused by protozoans. Whereas typhoid and tuberculosis, TB, we can call in short, by bacteria. Okay, now you can see the structure of this also. Bacteria structure, two structure are there, rod shaped bacteria, and here is algae. Two examples are there, Chlamydomonas and Spirogyra, and protozoa, two examples, two structures you can see of Paramecium and amoeba. Then bread mold also, and from fungi you can see penicillium and aspergillus, and viruses structure looking like this. Okay, so where do microorganisms live? Microorganism कहाँ रहते हैं? Microorganism may be single celled like bacteria, algae, protozoan, or multicellular. They can be such as many algae and fungi. They live in all types of environment, ranging from ice cold climate to hot spring also, and desert to marshy land also. ये ठंडी से ठंडी जगह पे भी रह सकते हैं और गर्म से गर्म जगह पे भी रह सकते हैं, डेजर्ट पे भी रह सकते हैं, मार्शी लैंड पे भी रह सकते हैं. एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स ऑल्सो. सम microorganisms grow on other organisms while other exist freely. कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरों पे
रह सकते हैं और कुछ फ्री रहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ दैम बेनिफिशियल, कुछ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, कुछ हमारे लिए हार्मफुल है और कुछ डिजीज़ का कारण है। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ होते हैं कई सारे पर्पजेज़ के लिए, जैसे आप कर्ड के प्रिपरेशन के लिए, ब्रेड के प्रिपरेशन के लिए और केक बनाने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। बहुत सालों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी किया जा रहा है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट ऑल्सो। ये एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी काम आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें कि वेजिटेबल्स की पील्स आ जाते हैं, उनके छिलके आते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स के बचे कुछ पार्ट, फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन into harmless and यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। इस पे बैक्टीरिया का बहुत अच्छा रोल है, जो कि इनको क्या करने के लिए यूज़ करता है, डिस्पोज करने के लिए हेल्प करता है। बैक्टीरिया और भी यूज़फुल है मेडिसिन्स के लिए, एग्रीकल्चर में भी इनका बहुत रोल है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में अपना रोल प्ले करते हैं। मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड कर्ड, जैसे कि आपको बता ही दिया है, इसमें सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं। कर्ड में बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को। ये बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, ये मिल्क में मल्टीप्लाई कर होता है और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़, ये चीज़ बनाने के काम आते हैं, पिकल्स अचार बनाने के काम और कोई दूसरे फूड आइटम्स के भी काम आते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज, भटूराज, ये सब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कर्ड। ठीक है, यानी कि ये सब थे आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ईस्ट जो है रिप्रोड्यूस होता है बहुत तेज़ी से और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब वो रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ईस्ट बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसमें बबल्स, गैस के बबल्स जो हैं फिल कर देते हैं, हो जाते हैं डो में, यानी कि आटे में गुदे हुए, और उसके बाद उसका वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। दिस इज़ द बेसिस of the use of yeast in baking industries for making breads and pastries and cakes. Now commercial uses means इनका commercial use क्या है। इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यूज़ होता है अल्कोहल की, वाइन के, एसिटिक एसिड, विनेगर बनाने के। ईस्ट का कमर्शियल यूज़ सबसे ज़्यादा जो है वो है अल्कोहल और वाइन के लिए। ठीक है, फॉर दिस पर्पसेस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, वो प्रोसेस जिसमें शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन या कन्वर्ट किया जाता है उसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने 1857 पे। नाउ मेडिसिनल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एंटीबायोटिक टैबलेट हमें देते हैं, कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन भी उसमें होता है। ठीक है, इन सब का सोर्स जो है वो है मेडिसिन का सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस तरीके के मेडिसिन को, जो मेडिसिन किसके, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं या उन्हें पूरी तरीके से किल कर देते हैं, वो एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। आज की डेट में एंटीबायोटिक्स
बहुत सारे आपको मिलेंगे मार्केट पे, जिसमें कि कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं बैक्टीरिया और फंगी से बने हुए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एराइथ्रोमाइसिन। ठीक है। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 पे वर्क किया था कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे। ठीक है। उन्होंने देखा कि अचानक से कुछ स्पोर्स दिखे उन्हें ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट्स। उनकी जो कल्चर प्लेट होती है ये आपको लैब में मिलेगी, जब बायोटेक्नोलॉजी की लैब होती है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और उन्होंने मोल्ड पेनिसिलिन प्रिपेयर किया था। इस तरीके से आप इस लेसन में और भी कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। वैक्सीन्स मिलेंगी। ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स जो है आपको बताया था अभी, जो डिजीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने का या स्टॉप करने का काम करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या है? When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर कर जाता है हमारी बॉडी पे, तो उस टाइम पे बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है उनसे लड़ने के लिए। ठीक है। एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स का 1798 पे। ठीक है। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. वैक्सीन जो दिया जाता है वो वैक्सीन को हमारी बॉडी पे एंटर किया जाता है और उसके बाद क्या है, वो हमारी बॉडी को क्या करता है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बचाता है हमेशा के लिए। इसमें सेवरल डिजीज़ हैं, जैसे कि कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये सारी वैक्सीन्स। ओके। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बहुत एटमॉस्फेयर में कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी को। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. इसमें देखिए कुछ आपको पिक्चर दिखाई दे रही है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है। नाउ हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉजिंग है, इनको बोलते हैं पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, anything और leather also. ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस में है, पैथोजेंस इनको बोलते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं या फिर कोई खाना खाते हैं, उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में कांटेक्ट में आते हैं और ये हमारी बॉडी को डिजीज दे देते हैं। और जैसे ही हम क्या करते हैं, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये ट्रांसमिट हो सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के, जिस इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू आ सकते हैं और एनिमल्स के थ्रू। माइक्रोबियल डिजीजेस can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food and physical contact. These are called communicable diseases. एग्जाम्पल है इसमें कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ये सारी डिजीज़ जो है एक दूसरे के कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं। मीन्स हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, चाहे एयर से, वाटर से, फूड से या फिजिकल कांटेक्ट से, किसी से भी, तो ये हमें हो सकती है।
Now some carriers also, there are some insect also and animal also which acts as a carriers of disease causing microbes, जैसे कि इसमें हाउस फ्लाई and female anopheles mosquito. Female Aedes mosquito acts as carrier of dengue virus. Female anopheles mosquito which carries the parasite of malaria plasmodium. Okay, so we have to सेव आवर एनवायरनमेंट. हमें पानी को रुकने से बचाना चाहिए, कहीं पर जमा होने से रोकना चाहिए. नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स. रॉबर्ट कोच 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis, which causes anthrax disease. Here one table, some common human disease caused by microorganisms like tuberculosis from bacteria, measles viruses, chickenpox virus, polio virus, cholera bacteria, typhoid bacteria, hepatitis A virus and malaria protozoa. Now some common plant diseases also. citrus canker from bacteria, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर. रस्ट ऑफ व्हीट फंगी के थ्रू, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड सीड. येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी ओखरा, इसका भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट. नाउ फूड पॉइजनिंग. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. Food preservation. So we have to preserve our food. Chemical method also. Salt and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate or sodium metabisulfite are common preservatives. These are also used in jam or squashes. Preservation by common salt. किस किस को हम प्रिजर्व कर सकते हैं? मीट, फिश. ओके, ड्राई सॉल्ट से इसको कवर करके इस पे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं. सॉल्टिंग यूज़ होती है प्रिजर्व करने के लिए आंवला को, रॉ मैंगोस को एंड टैमरिंड इमली को. शुगर के थ्रू जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस को प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है. देन ऑयल और विनेगर के थ्रू पिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट एक्सेट्रा. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? मिल्क को. ठीक है. व्हाट इज पास्चराइजेशन? पास्चराइजेशन, the process which discovered by Louis Pasteur. In this, pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degree for 15 to 30 सेकेंड. तो मिल्क को इसमें हीट किया जाता है 70 डिग्री पे 15 से 30 सेकेंड के बीच. देन इसको अचानक से सडनली इसको तुरंत चिल किया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है. बाय डूइंग
सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को बचाता है। देन स्टोरेज एंड पैकिंग, ड्राई फ्रूट्स की स्टोरेज पैकिंग के लिए भी सील्ड एयर टाइट पैकेट्स का यूज़ किया जाता है। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरियम राइजोबियम you have learnt in class 6th and 7th also. ओके ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को शो करते हैं। नाउ राइट नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में आपको जैसे कि पता ही है, यू नो दैट 78% नाइट्रोजन गैस in our atmosphere. Nitrogen is one of the essential constituents of living organism as parts of proteins, chlorophyll, nucleic acid, vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants or animals. इनको directly नहीं लेते plants animals. Certain bacteria and blue green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compound of nitrogen. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animal feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. When plants and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into nitrogenous compound to be used by plants again. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back to the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. You can see in this, ठीक है, how it is going to be fixed nitrogen cycle. Thank you, students.